Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your SST classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is in the earliest cities. So, इस chapter में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हमारी cities जो है वो develop होना start हुई थी. So, बच्चों, let's see the discovery of the first cities. It is the year 1856. Two British engineers are laying the East Indian Railway Company line to connect the cities of Karachi and Lahore. So बच्चों हम लोग कौन से साल की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं 1856 की और हमारे पास है दो ब्रिटिश इंजीनियर्स जो कि क्या कर रहे हैं, वो लोग ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी लाइंस जो है वो डाल रहे हैं एंड वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि वो दो सिटीज को कनेक्ट कर पाए एंड वो दो सिटीज कौन सी है, कराची एंड लाहौर. One day they suddenly come across the ruins of an ancient city there. अब बच्चों एक दिन इस तरह से काम करते हुए उनको कौन दिखी, उनको एक ancient city जो है वो दिखी. They find hard, well burned bricks and ruins of ancient buildings. So अब उनको वहाँ पे क्या मिल रहा था, उनको वहाँ पे hard, well burned bricks यानी कि जली हुई जो ईंटें होती है वो मिल रही थी एंड देन उनको साथ में ruins मिल रहे थे ancient buildings के, यानी कि जो पुरानी buildings होती है उनको वो भी मिल रही थी. Months later they get to know about another such site and इस तरह से कुछ महीने निकल जाने के बाद उनको एक ऐसी ही दूसरी साइट के बारे में भी पता चला. Archaeologists conclude that the bricks are over 5000 years ago and वहां से archaeologists को क्या समझ में आया कि bricks जो है वो आज से 5000 साल पुरानी है. Excavations reveal that the bricks belong to two important ancient cities, Mohenjo-daro in Pakistan's Larkana district and Harappa in Montgomery district of Punjab. अब बच्चों इन excavation से क्या पता चला कि ये bricks जो है वो कौन से cities को belong करती है, ये belong करती है Mohenjo-daro and Harappa को. Now the ruins of Mohenjo-daro were found along the banks of Indus River, whereas those of Harappa were discovered on bank of its tributary Ravi. So बच्चों ये जो चीजें हमको मिल रही थी, यानी कि हमारे इंजीनियर्स को जो ये चीजें मिल रही थी, मोहनजोदारो की ये ruins जो है वो कहाँ पे मिल रहे थे, ये banks of Indus River पे मिल रहे थे. Whereas हरप्पा के जो ये ruins थे वो कहाँ पे मिल रहे थे, वो मिल रहे थे bank of its tributary जो कि क्या है, रवि. Some other sites have also been discovered, that is Lothal, Rajdi, Dholaviri in Gujarat, Rupar in Punjab, Kalibangan in Rajasthan, Banavali in Haryana, Alamgirpur in Uttar Pradesh, Katdiji and Chancholur in Sindh. And बच्चों इस तरह से और भी बहुत सारी sites जो है वो discover करी गई. Now we have fact file. The first extensive excavation at Harappa was started by Rai Bahadur Dayaraham Sahani. So बच्चों जो सबसे पहला excavation शुरू हुआ था हरप्पा सिटी के बारे में, so वो कहाँ से start हुआ था, वो start किया था राय बहादुर दयाराम साहनी ने and ये start हुआ था 1920 में and in 1922 excavations were carried out by Rakhal Das Banerjee at Mohenjo-daro and इनके बाद किसने इस excavation को continue रखा था, रखल दास बैनर्जी ने. Now बच्चों the above mentioned cities together belong to what is now called the Indus Valley Civilization. तो हमने ऊपर जो दो cities का नाम लिया है उनको मिलाकर ही क्या बना था, Indus Valley Civilization. So Indus Valley Civilization is one of the world's earliest civilization to begin in 2600 BCE and lasted up to around 1900 BCE. So बच्चों Indus Valley Civilization जो है वो हमारा सबसे पहला civilization है and ये start हो गया था 2600 BCE में और ये कब तक चला था, ये चल रहा था 1900 BCE तक. Indus Valley Civilization is placed under the category of Bronze Age civilization because Indus Valley Civilization developed at the time when people had no knowledge of iron. Instead of iron, they used bronze to be produced by mixing copper with tin. अब बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के अंदर रखा जाता है एंड ऐसा क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ तब लोगों को आयरन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यानी कि उनको लोहे के बारे में कुछ भी नहीं पता था. बट इंस्टेड ऑफ आयरन उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने ब्रॉन्ज यूज किया और उन्होंने वो ब्रॉन्ज बनाया कैसे, बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन. Now बच्चों Indus Valley Civilization is named thus because
Most of the sites belonging to it developed on the banks of river Indus and its tributaries. So बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग इंडस वैली ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी जो ज्यादातर साइट्स थी वो कहाँ पे थी? वो डेवलप हो रखी थी रिवर इंडस के आसपास. The land around the river being fertile, the most people had a good crop and they could produce more than they required for themselves. अब बच्चों, इंडस रिवर के आसपास का जो लैंड था वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था. फर्टाइल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चीजें बहुत अच्छे से ग्रो करती है. सो इस रिवर का लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी क्रॉप्स जो है वो ग्रो करी जा सकती थी. एंड बच्चों, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रॉप्स जो है वो ग्रो करी जाती थी, इतनी तो रिक्वायर्ड भी नहीं होती थी. It led to agricultural surplus. Besides agriculture, different crafts could also be developed. And इस फर्टाइल लैंड की वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया था. एंड एग्रीकल्चर के साथ साथ जो डिफरेंट क्राफ्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पर डेवलप करे जा रहे थे. ना बच्चों, लेट्स लर्न मोर. All important early civilization developed on the banks of the river is called to be river valley civilization. So बच्चों, जितना ज्यादा अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था बैंक ऑफ रिवर के ऊपर, उनको बोला जा रहा था रिवर वैली सिविलाइजेशन. एंड ऐसा क्यों था? रिवर प्रोवाइडेड abundant supply of water to support life settlements. Land was extremely fertile to support agriculture. क्योंकि बच्चों, रिवर के पास भर भर के पानी था, जिसकी वजह से वहां पर लाइफ जो है वो इजिली सरवाइव कर सकती थी. देन बच्चों, वहां का लैंड जो था तो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल था. एंड अगेन वो एग्रीकल्चरल पर्पस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था. Rivers could be used as means of transportation for trade. और rivers को एक means of transportation की तरह यूज करा जा सकता था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह रिवर के थ्रू पहुंचा जा सकता था. Consequently, villages developed into cities and craft items began to be exchanged through trade. And बच्चों, धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो villages थे वो किसके अंदर बदलने लग गए? cities के अंदर. एंड जो क्राफ्ट आइटम्स होती है वो सारी चीजें एक्सचेंज होने लग गई, यानी कि उनका जो है एक तरीके से व्यापार जो है वो चालू हो गया. Then we have town planning. So बच्चों, most of the cities were divided into two parts. The citadel, the part to the west, was smaller but higher and lower town. The part to the east was larger but lower. So बच्चों, अब इसके बाद क्या हो रहा था? इसके बाद टाउन प्लानिंग जो है वो स्टार्ट करी जा रही थी. सो बच्चों, इसके बाद जो टाउन प्लानिंग है वो स्टार्ट करी जा रही थी. एंड बहुत सारी सिटीज को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. पहला पार्ट था सिटाडेल. अब सिटाडेल जो पार्ट है वो कहाँ पे था? वो वेस्ट साइड पे था. ये छोटा था बट हायर पोजीशन पे था. देन हमारे पास था लोअर टाउन. और ये लोअर टाउन कहाँ पे था? ये ईस्ट साइड में था. ये लार्जर था, यानी कि बड़ा था, बट ये लोअर था. हाइट में इसका थोड़ा हाइट जो है वो कम थी. Walls of baked brick were built around each part to protect them from floods. अब बच्चों, जो दीवारें बनाई गई थी वो किसकी बनाई गई थी? वो बेक्ड ब्रिक्स की बनाई गई थी, यानी कि ईंटों को थोड़ा सा क्या किया गया था? बेक किया गया था. एंड ऐसा क्यों करा जा रहा था? ताकि जो घर है वो फ्लड से, यानी कि जब पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो तो घर जो है वो प्रोटेक्टेड रहे. इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट वी हैव द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग. अब बच्चों, यहाँ पे जो ब्रिक्स है वो कैसे पैटर्न में थे? वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में थे, यानी कि इस तरह से इंटरलॉक्ड क्रिस क्रॉस पैटर्न में थे. एंड इस वजह से वॉल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी. Special buildings were constructed on the citadel, that is Mohenjo-daro, a very special tank called the Great Bath. अब बच्चों, कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स जो है वो भी बनाई जा रही थी सिटाडेल में. एंड वो कौन था? वो था मोहनजोदारो, जो कि एक बहुत स्पेशल टैंक था. एंड इसका नाम क्या था? ग्रेट बाथ. Then we have Great Bath. So बच्चों, it was rectangular citadel tank lined with bricks. So ये एक rectangular citadel tank है. एंड इसके चारों तरफ क्या था? इसको लाइन करा गया था ब्रिक से. Posted with plaster and a layer of natural tar to make it watertight. एंड बच्चों, यहाँ पे क्या कर रखा था? इसको प्लास्टर से कोट कर रखा था एंड नेचुरल टार लगा रखा था ताकि ये एयर टाइट रहे, यानी कि इसके अंदर से हवा बिल्कुल ना निकले. There were steps leading down to it and from two sides, and there were rooms around the tank probably used as changing rooms. So यहाँ पे बच्चों, नीचे जाने के लिए क्या थे? कुछ स्टेप्स थे, यानी कि कुछ सीढ़ियाँ थी. एंड इनके आसपास कुछ रूम्स भी थे. एंड ये रूम्स जो है वो probably changing rooms की तरह यूज करे जाते होंगे. Some scholars believe that important people of the city might have bathed here on some special occasions. So ये माना जाता है कि इस सिटी के जो कुछ important लोग होंगे वो यहाँ पर आकर ही नहाते होंगे किन्हीं स्पेशल ओकेजन्स के टाइम पे.
Other cities, that is Kalibangan and Lothal, had fire altars where sacrifices may have been performed. So बच्चों कुछ cities जैसे कि कालीबेंगन और लोथल में क्या देखने को मिला कि वहां पे फायर अल्टर्स थे। इससे ये माना जाता है कि वहां पे क्या होते होंगे, वहां पे कुर्बानियां दी जाती होगी। Then बच्चों and some cities like मोहनजोदारो, हरप्पा and लोथल had elaborated storehouse। और बच्चों कुछ cities जैसे कि मोहनजोदारो, हरप्पा, इनके पास क्या होते हैं, elaborated storehouses होते हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स और दी लोअर टाउन। सो अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि लोअर टाउन के हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स जो है वो कैसे थे। Houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard। So वहां पे घर जो है उनमें खाली 1 या 2 मंजिल ही होती थी। Most houses इनके पास सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, यानी कि नहाने की एक अलग से जगह होती थी, एंड कुछ के पास अच्छी खासी सप्लाई ऑफ वाटर भी होती थी। एंड बच्चों मेनी ऑफ दीज सिटीज ये कवर्ड थी ड्रेन से। ईच ड्रेन इनके पास एक जेंटल स्लोप होता था जिससे फ्लो जो है वाटर का वो निकल सके। ना बच्चों ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो बहुत ज्यादा एडवांस था, दैट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। सो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। Drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones। So बच्चों यहाँ पे drains कैसे थे, यहाँ पे हर house से drains जो है वो connected थे, and इस तरह से ये drains streets में आ रहे थे, and उसके बाद वो smaller drains में जा रहे थे, और smaller drains से फिर वो बड़े drains में जा रहे थे। Now बच्चों drains had inspection holes at regular intervals probably meant for cleaning। So इसका मतलब drains के पास क्या थे, drains में जाने के लिए कुछ holes थे, and ये holes इसलिए होंगे ताकि उनके अंदर जो regular cleaning है वो हो पाए। The streets cut across one another perpendicularly dividing the city into large rectangular blocks। अब वहां पे जो गलियां थी वो क्या करती थी, एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, वहां की सिटी जो है वो लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। The main streets of Mohenjo-daro were about 10 meters wide and 800 meters long, much like the cities of today। So बच्चों जो मोहनजोदारो के टाइम की जो स्ट्रीट्स थी वो 10 मीटर्स क्या होती थी, वाइड होती थी, 800 मीटर लंबी होती थी, यानी कि जैसे आज की सिटीज की स्ट्रीट्स है उसी तरह उस टाइम की सिटीज की स्ट्रीट्स होती थी। Then we have life in the city। So people in the Indus Valley civilization स्पेशलाइज्ड इन वेरियस काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन। सो बच्चों उस टाइम के लोग जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके के ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व थे। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। Some wooden plugs have been found in Kalibangan, which shows that the people plug the fields with wooden plugs। So इसका मतलब हम लोगों को इससे ये आइडिया मिलता है कि उस टाइम के लोग क्या करते होंगे, वो लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में थे क्योंकि उनके पास वुडन प्लग्स थे। लोग उस टाइम पे क्या ग्रो करते थे, वीट, बार्ले, मिल्ट, फ्रूट्स जैसे कि बनानास एंड और भी डिफरेंट फूड्स जो है वो ग्रो करे जाते थे। टेराकोटा फिगर्स, कार्विंग ऑफ एनिमल्स ऑन सील्स एंड बोल्स ऑफ एनिमल्स फाउंड शो दैट बफेलोज, गोट, शीप, डॉग्स एंड कैटल्स वर डोमेस्टिकेटेड। सो बच्चों हमको कुछ ऐसे स्कल्पचर्स मिले हैं जिससे क्या पता चल रहा है कि उस टाइम पे बफेलोज, गोट, शीप, डॉग, कैटल इन सबको डोमेस्टिकेटेड किया जाता था, यानी कि इनको यूज करा जाता था अपने पर्पसेस के लिए, या फिर इनको घर के आसपास जो है वो रखा जाता था। They might have tamed elephants too। एंड यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मिली है, कुछ ऐसी सोर्सेज मिली है जिससे ये भी पता चलता है कि शायद उस टाइम पे एलिफेंट्स को भी अपने साथ रखा जाता था। Then we have crafts, various stone and terracotta toys have been found at different sites। So अब हमको कुछ stones और terracotta toys जो है वो भी मिले हैं different sites पे। In toy figures of animals, the limbs could be moved by pulling a string and bird-shaped whistles have also been found। So हमको figures में क्या क्या मिला है, कुछ ऐसे animals मिले हैं जिनके limbs को क्या कर सकते हैं, pull कर सकते हैं एक string की तरह, और कुछ bird-shaped whistles मिली है and वो भी हम लोगों को मिली है। Some articrafts discovered are those made of beads and blades। अब बच्चों जो कुछ articrafts मिले हैं उनसे क्या पता चल रहा है कि ये किसके बने हैं, beads और blades के। They also knew how to make ornaments such as bracelet, necklace, amulets made of beads, shells, gold and silver। Clay spineless, needles, buttons and traces of cotton and wool found at different sites indicate that people were skilled in weaving clothes। So बच्चों उस टाइम पे हम लोगों को needles, buttons and कुछ cottons और wools भी मिले हैं जो कि क्या इंडिकेट करते हैं कि उस टाइम के लोग जो है वो weaving के अंदर भी indulged होंगे। Now next we have seals। Perhaps seals were used for trading purposes to stamp goods। अब बच्चों उस टाइम पे seals किस लिए यूज करा जाता था, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ताकि उस पे स्टैम्प जो है वो लगाया जा सके।
Many small flat seals have been discovered which have carved figures of animals and writing on them. So हमको कुछ ऐसी seals भी मिली है जिनके ऊपर animal figures है या फिर कुछ कुछ लिखा हुआ है. Seals बच्चों यूजुअली किसकी बनी होती है? स्टेटाइट, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन है एंड वो फ्लैट होता है और रेक्टेंगुलर होता है. देन वी हैव ट्रेड, सो बच्चों आर्टी क्राफ्ट्स एंड सील्स जो कि मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में. एंड ये कहाँ से है? ये है मीसोपोटामिया एंड इजिप्ट से. ये शो करती है कि उस टाइम पे इनके बीच में क्या चलता होगा? ट्रेड चलता होगा, यानी कि व्यापार जो है वो चलता होगा. Discovery of toy carts, carving of boats and ships indicate that people traveled from one place to another and transported their goods. So बच्चों हमारे पास यहाँ पे टॉय कार्ट्स के भी सोर्सेज है, कार्विंग ऑफ बोट्स के भी सोर्सेज है, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम के लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते होंगे फॉर ट्रेडिंग पर्पस. Silver, turquoise and lapis lazuli were imported from Persia and Afghanistan while copper came from Persia. So बच्चों सिल्वर जो है वो कहाँ से आता था? वो lapis lazuli से आता था. एंड बच्चों अफगानिस्तान से हमारे पास क्या आता था? कॉपर. देन हमारे पास है रिलीजन. सो पीपल इन द इंडस वैली ये वर्शिप करते थे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को जो इनके आसपास होते थे. एश मार्क्स फाउंड ऑन सम सील्स, ये क्या इंडिकेट करता है? कि वो लोग इंसेंस स्टिक्स को भी बर्न करते थे, यानी कि पूजा करने के लिए वो उनको भी जलाते थे. सील्स ये शो करती है कि ट्री जैसे कि पीपल एंड एनिमल्स जैसे कि बुल्स वो भी इस टाइम पे यहाँ पर मिलते थे. देन बच्चों सील्स विद अ मेल फिगर, यानी कि ऐसी सील जिसपे मेल फिगर है वो किससे सराउंडेड है? एनिमल से. एंड ये इसको हम क्या बोलते हैं? पशुपति बाय हिस्टोरियंस. देन बच्चों एक टेराकोटा फीमेल फिगर जो है वो भी मिली है विद एन इलैबोरेट हेड ड्रेस एंड अ क्रीपर ग्रोइंग आउट ऑफ हर स्टमक. तो उनके पास क्या है? एक इलैबोरेट हेड ड्रेस है एंड एक क्रीपर जो है वो भी उनके स्टमक से निकल रहा है. तो स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये कौन होंगी? ये मदर गॉडेस होंगी या फिर गॉडेस ऑफ अर्थ होगी. Graves with pots and other articles indicate that Indus Valley people believed in life after death. तो बच्चों जो graves है यानी कि जो कब्र है उनके अंदर pots मिलते थे, तो उससे क्या माना जाता है कि इंडस वैली के लोग उस टाइम पे मानते होंगे कि मरने के बाद भी एक लाइफ जो है वो होती है. Then we have script of Indus Valley. So Indus Valley people ये क्या करते थे? यूज करते थे पिक्चर्स को एज अ स्क्रिप्ट, जिसको ये लोग बोलते हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. स्कॉलर्स बच्चों उस टाइम पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते थे इन रीडिंग दिस स्क्रिप्ट, क्योंकि इनके पास क्या होता था? एब्सेंस होता था रिजेंबल्ड स्क्रिप्ट्स का. देन बच्चों ये स्क्रिप्ट्स जो है ये एक अर्लीस्ट फॉर्म्स है राइटिंग इन इंडिया का. देन वी हैव द एंड ऑफ सिविलाइजेशन. सो हिस्टोरियंस हैव ऑफर्ड सेवरल रीजंस फॉर द एंड. सो हिस्टोरियंस के पास कुछ रीजंस है इस एंड को बताने के लिए. एंड वो रीजंस क्या क्या है? क्लाइमेट चेंज ड्यू टू लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो क्लाइमेट का चेंज आ रहा था डिफॉरेस्टेशन की वजह से. देन एपिडेमिक्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज, तो कुछ बीमारियां हुई होगी या कुछ ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज हुई होंगी जिसकी वजह से सिविलाइजेशन का एंड हो गया. देन वी हैव सीरीज ऑफ इन्वेशंस बाय सेंट्रल एशियन ट्राइब्स. नाउ बच्चों लेट्स क्विकली रिकॉल. सिविलाइजेशन क्या होता है? लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि शेयर करते हैं एडवांस वे ऑफ लर्निंग एंड लिविंग को. इंडस वैली जो है वो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है. मेन सिटीज कौन कौन सी थी इंडस वैली की? वो थी हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथल, रोपरी, कालीबंगन एटसेट्रा. देन बच्चों यहाँ पे सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट भी है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस वैली के अंदर. सील्स को यूज किया जाता था एंड स्किल्स को डिस्कवर किया गया है फॉर ट्रेडिंग पर्पस. स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली जो है ये डेसिफर्ड नहीं है अभी तक. स्कॉलर्स जो है उन्होंने डिफरेंट रीजंस दिए है फॉर डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन. नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइजेज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है. सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.